حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج دکتر الیاس صاحب کی کلاس یا دکتر پرویز کی ہونے والی تھی، تو دونوں بھی مشائخ جو سفر پر ہونے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر الیاس صاحب نے کہا کہ وہ کل شیخ محترم جو ہے کل کلاس لیں گے انشاءاللہ. تو آج میں ان کی جگہ پر کلاس لے رہا ہوں، کیونکہ وہ کسی اور کی جگہ پر کلاس لینے کے لیے کچھ آگے پیچھے ہوا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کلاس میں اخبار آحاد یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل کی کلاس جو عقیدہ تحاویہ تھی، اس جی میں کچھ طالبات جو عربک لینگویج اٹینڈ کر رہے ہیں، الحمدللہ فیل فائل بتائے وہ لوگ ماشاءاللہ قرآن کی آیت میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا والی آیت میں. ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، بہت اللہ ترقی دے، اللہ قبول کرے آپ لوگوں کی محنتوں کو. بہت اچھا بیچ ہے، بہت خوشی ہوئی. بہت اچھا ممتاز بیچ ہے آپ لوگوں کا. اس بیچ میں جو ہے نا بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، الحمدللہ بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، بہت اچھے فیڈ بیک آ رہے ہیں، اور علماء اور اساتذہ بھی بہت خوش ہیں آپ لوگوں کی محنت سے. تو کوئی آگے بڑھ کر حدیث مشہور ذرا یاد کروائیں گے؟ 5 ٹائم بولیے کوئی، تاکہ سب کو یاد ہو جائے. آپ لوگوں کو مصطلح الحدیث پڑھنے سے کچھ ابھی تک فائدہ ہوا؟ 5 ہفتے میں کہیں نہ کہیں کوئی کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، کوئی بڑی کتاب کھولنے کا موقع ملا آپ لوگوں کو کسی کو؟ اور یہ ٹاپک جو آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ فقہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو روزمرہ زندگی میں وہ مسئلے آ جاتے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں تو روزانہ زندگی میں آپ کو کام آتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ عقیدہ پڑھتے ہیں تو روزمرہ زندگی میں کام آتا ہے. لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، آپ کو کتب حدیث کھولیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیوں رٹ رہی ہوں، میں کیوں یاد کر رہی ہوں. تو کیا آپ لوگ صحیح بخاری، صحیح مسلم عربی میں یا اردو میں کتابیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جی بتائیے. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام. پہلے ہم لوگ حدیث اگر پڑھے تو صرف متن دیکھتے تھے شیخ، اب ماشاء راوی کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں شیخ. اچھا، تو آپ لوگوں کو راوی کی طرف دیکھنے کا بھی فوبیا، جو خوف تھا وہ خوف چلا گیا، الحمدللہ شیخ. وہ شروع اور سے اس کے آگے اندر مزہ آ رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ شیخ، اللہ کا فضل. اچھا، اور ایک کانفیڈنس آ رہا ہے آپ کو، اور کتنی علماء نے محنت کی، کتنی حدیثوں کے پیچھے محنت ہوئی، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا آہستہ آہستہ. الحمدللہ شیخ. جی شیخ. ہاں فرمائیے، اور کون ہے ہاتھ اٹھانے والے؟ سیدہ حفصہ جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ پوچھ رہے تھے کہ حدیثوں کی کتابوں کو غور کیے کیا؟ تو جی ہاں. الحمدللہ میں پڑھ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ درس حدیث میں بھی جو ہے میں یہ ساری چیزیں لے رہی ہوں. تو درس آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو، آپ لوگ سارے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو یاد کروائے ہیں اسکول میں یا کالج میں، یا نہیں تو آپ کے گھر میں 10-15 حدیثیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی یاد کروائے ہیں ابھی تک؟ شیخ جی شیخ، میں نے اپنے نوازوں کو آنے یاد والے کروائی بچوں کو جو ہے یاد ہو گئے ہیں، انشاءاللہ میں ان بچوں کا ریکارڈ جو ہے آپ کو بھیجوں گی. بہت اچھا بہت اچھا. ہاں آپ ایڈمن کو بھیجیے. ایڈمن کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ گروپ میں بھیجیں گے اور سب لوگوں کو سنائیں گے وہ لوگ انشاءاللہ شیخ. انشاءاللہ شیخ، میں نے بھی اپنے نوازوں کو یاد کروائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو بچے جلدی یاد کر لیں، 2 ورڈ 3 ورڈ کی حدیثیں ان کو جلدی یاد ہو جاتی ہے. آپ نے ہاں محسوس جی کیا؟ جی شیخ. وہ معنی اور پوچھتے پھر ہیں وہ آپ سے، جیسے مثال کے طور اور پہ پھر وہ ہمارے ایک ایسے دوست. پڑھتے ہیں جیسے وہ بچے پوئم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ پھر چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے لگتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے. گھر میں جو ہے بچوں کو اگر آپ، یہ چھوٹے بچوں کے دماغوں میں اگر آپ فل نہیں کریں گے قرآن اور حدیث، تو یہ بچے گالیاں دیں گے، گندی باتیں کریں گے، گانے گائیں گے.
मेरी बच्ची को भी अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे, सिर्फ ट्यूशन के बच्चों का नाम ले रहे हैं, आप बोल रहे हो। एक मिनट, मैं जो है ना अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। जी जी जी, शेख आ रही दरम्यान है। में वो फोन आ गया था तो कट हो गया, फिर मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया, माजरत चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग याद करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आप एडमिन को आप भेजिए, एडमिन को मैं बोलता हूँ कि वो यहाँ पर शेयर करें, उसके बाद हम सबको सुनाएंगे। आपके आपके बच्चे जो हदीसें याद कर रहे हैं, आप लोग भी याद करें तो अपने अपने भी ऑडियो भेजिए, अच्छा सा रिकॉर्ड करके, और उसके यूट्यूब पे बनाकर आप अपने चैनल बनाइए, छोटे बच्चों के, अपने खानदान का और आपका चैनल बनाइए। इंशाल्लाह जो है ना, उससे जज्बा आएगा सबको। जी हाँ, हदीस मशहूर को याद करवाएंगे। जी आप शेख। लोग सही हदीस बुखारी, सही मशहूर। मुस्लिम, जी सही शेख। बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी किस किस के घर में है, याद कोई खरीदना है? आपके पास सैयदा हफ्सा, सैयदा जी है शेख मेरे आपके, पास है। जी क्या शेख क्या है मेरे आपके पास पास? भी है। क्या क्या है आपके पास? जी शेख, मेरे पास बुखारी और मुस्लिम है दोनों। सही शेख बुखारी मेरे है, पास सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिजी है, और इमाम मोत्ता है, और माशाअल्लाह। वो मुवत्ता वर्ड है है, मुवत्ता वर्ड रियाजुस नहीं है, सालिहीन मुवत्ता। भी है। सही वर्ड क्या है? रियाजुस मुवत्ता, मऊ से, मुवत्ता। मुवत्ता, जी मुवत्ता, जी मुवत्ता। जी मुवत्ता भी है, अच्छा, अभी और आप लोगों के पास रियाजुस रिकॉर्डिंग है सालिहीन तो भी। सुनाइए, बहुत अच्छी बात है। आपका रिकॉर्डिंग है तो सुनाइए आप लोगों के मोबाइल से। बच्चों का रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया अभी? मैं नहीं कल कर शेख, वो लूंगी रिकॉर्ड नहीं किया। इंशाल्लाह। खुलूद अच्छा सुना। ठीक है। न कल तो मैं नहीं आऊंगा, कल कोई और आएंगे, नेक्स्ट जुम्मा मैं को जब मैं एडमिन आऊंगा। को मैं तो एडमिन को भेज दूंगी। खुलूद सुनाते हैं हम। अपने एडमिन तो वो बहुत लंबा सफर है, आप लोग डायरेक्ट इधर से भी सुना सकते हैं ना। मैं मेरी जी शेख नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सुना जुम्मा देंगे। में आप लोग रिकॉर्ड करके सुनाइए, आपके यानी तो आपके बच्चों के, आप लोगों के या आपके बच्चों के, या आपके जी स्टूडेंट्स के, स्कूलों में जो भी आप याद करवा रहे हैं, ताकि सबको शौक आए इंशाल्लाह। हाँ, तौफीक रियाज, इंशाल्लाह। आपका क्या कहना है? जी शेख, मेरे पास ये किताबें हैं जैसे हदीस। बुलूगुल मराम है मेरे पास, फिकुल हदीस है, माशाल्लाह, मिशकातुल मसाबिह, रियादुस सालिहीन, सही बुखारी, अच्छा, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम। उम्दतुल सही अहकाम। मुस्लिम का ट्रांसलेशन मतन का या सनद भी है उसमें? नहीं शेख, उसमें बुलुगुल ये मराम में, रियाद सालिहीन में सनद नहीं होती है, मिशकात में सनद नहीं होती, क्योंकि ये सब किताबें, सब माने बाद में मेन सेकेंडरी किताबें मसदर है। जिसको मसादिर कहते हैं, मसादिर, मेन जी जी किताबों क्या कहते हैं? मसादिर रईसिया। ठीक, चलिए, शेख बहुत मेरे खुशी पास है। अरबी में है, मेन है मेरे पास। अरे माँ, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी किताबें अरबी में? सही बुखारी है, और अरबी में भी है, और उसकी शरह वाली भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, और दाऊद राज जो रहमहुल्लाह उनकी है, और बहुत अच्छे, सही मुस्लिम भी है, अरबी में भी है, और इसके अलावा वो शरह वाली भी है। बहुत अच्छे। बहुत खुशी की बात है। बाकी के जिनके पास नहीं है, सही बुखारी, सही मुस्लिम कम से कम खरीद लीजिए, और सुनन तिरमिजी, सुनन नसाई, तो उसके अंदर वो जो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह जो बातें बताते हैं, ये हसन है, ज़ईफ है, ये जो मुतवातिर है, ये मुनक़ते हैं, तो आपको समझने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह, मेरी ये बात है। तिरमिजी पढ़ना सनदों के साथ, ये सनदों को अच्छा समझना है तो तिरमिजी को जरूर पढ़िए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, औरत की, शेख जी हाँ, मसले मसाइल तो मेरे से हम इंशाल्लाह जो है ना बाद में हल करेंगे इंशाल्लाह। अभी शेख हम याद करते हैं इंशाल्लाह कुछ, जी अभी तक शेख जो पढ़ा अब आपने। अगर शेख अगर आप मुझसे अभी किसी ने पूछा है, अगर आप बता सकते हैं तो इंग्लिश में कोई अच्छी तफसीर बता दीजिए। तफसीर या हदीस की शरह? जी तफसीर।
आप इब्ने कुरान कसीर करीम की इब्ने कसीर की जो एवरेज वर्जन है शेख सफी और रहमान मुबारकपुरी वाली दारुसलाम की 10 जिल्दों में, वो रख लीजिए। इंग्लिश में है वो? हाँ, इंग्लिश में है। जी, जज़ाकल्लाह का खैर। नाम है ताफसीर इब्ने कसीर एवरेज वर्जन। और शेख सादी की भी आगे देखे, अब्दुर्रहमान अस्सादी, शेख अब्दुर्रहमान अस्सादी की तफसीर भी इंग्लिश में आ चुकी है 4 वॉल्यूम में। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रन। कोई याद दिलाएंगे हदीस है मशहूर? जी हदीस शेख मैं दिलाती हूँ। हाँ, जिसके पढ़िए 5। रावियों की तादाद, रुबीना आप याद दिला रहे हैं? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी आप दिला दें। हदीस मशहूर जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 3 हो या उससे ज्यादा अदद में हो मगर तवातुर की हद तक ना पहुंचे, और इसे मुस्तफीज भी कहा जाता है। हदीस मशहूर जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 3 हो या उससे ज्यादा अदद में हो मगर तवातुर की हद तक ना पहुंचे, और इसे मुस्तफीज भी कहा जाता है। हदीस मशहूर जिसके रावियों की तादाद किसी दौर जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 3 हो या उससे ज्यादा अदद में हो मगर तवातुर की हद तक ना पहुंचे, और इसे मुस्तफीज भी कहा जाता है। हदीस मशहूर जिसके रावियों की तादाद जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 3 हो या उससे ज्यादा हो, मतलब 3 या उससे ज्यादा अदद में हो मगर तवातुर की हद तक ना पहुंचे, और उसे मुस्तफीज भी कहा जाता है। बहुत अच्छा याद दिलाया। किसी को समझ में नहीं आई अभी तक डेफिनेशन, ये कोई बताइए, शर्माने की बात नहीं है। शेख कोई मुस्तफीज शेख का माना मुस्तफीज से क्या मुराद है? मुस्तफीज माने फैल जाना, मशहूर हो जा। मुस्तफीज मशहूर का सिनोनिम है। जी कोई चीज बहुत फैल जाती है ना, स्प्रेड हो जाती। देखिए, आप वायरल बोलते हैं, आज के दौर में क्या बोलते हैं? वायरल। वायरल। कोई चीज बह जाना, पानी खूब बह जाना, यानी खबर खूब फैल जाना, वायरल हो जाना। तो मशहूर भी रहना और साथ में 3, लेकिन तवातुर के हद तक नहीं। मतलब तवातुर के हद तक नहीं, मतलब रावी मुतवातिर। मुतवातिर में क्या होता है? 10 बहुत ज्यादा रावी भी होता है और झूठ पर जमा होने का इम्कान, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो तवातुर बहुत हाई लेवल में उसके अंदर जो है तादाद और यकीन जमा हो जाता है, इसलिए उसको मुतवातिर कहते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में कोई ऐसे हैं जिनको मशहूर का डेफिनेशन समझ में नहीं आया, तो आप बिला झिझक बोलिए ताकि हम समझाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख जी आप वाले। एक बार फिर से समझा सकते हैं? जी हाँ, देखिए, अब एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो आप क्या करते हैं? इन्नमल अमालु बिन्नियात अद्दीन वन नसीहा। तो इसको क्या कहते हैं? मतन कहते हैं, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहता है। ठीक है, इस पैगाम को सहाबा सुनेंगे या ताबईन सुनेंगे? सबसे पहले सहाबा। सहाबा। सहाबा से ताबईन सुनेंगे या तबे ताबईन? ताबईन। फिर ताबईन से अतबाए ताबईन सुनेंगे या तबे ताबईन? तबई तब- ताबईन। ताबईन, तबा हाँ, ताबईन। तो इसको चेन कहते हैं आप लोग, इसको सनद भी कहते हैं, राइट? जी हाँ, सब लोगों को क्लियर है? इसको सनद कहते हैं, इसको चेन कहते हैं, चेन ऑफ नरेटर। रावियों जी की सनद, मुख्तलफ रावियों की। तो उन्होंने रावी माने, सनद। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सहाबा ने, सहाबा से ताबईन ने, ताबईन से तबे ताबईन ने, तबे ताबईन से अतबा, उनके बाद उनके बाद उनके बाद। तो शागिर्द के शागिर्द, पहला जनरेशन, उसके बाद जाने से पहले शागिर्द, उस्ताद अपने शागिर्द को सुना कर जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है ना सनद? जी जी शेख। शेख, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को प्रॉब्लम है, सनद को समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो बिला झिझक बताइए।
सनद है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अब सहाबी, एक सहाबी भी सुन सकते हैं, 2 सहाबी भी सुन सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 70 भी हो सकते हैं, राइट? जी शेख। जी अब एक सहाबी से 70 ताबई ने सुना, दूसरे सहाबी से 2 ताबई ने सुना, तो इसका मतलब ताबई भी यहाँ पर बहुत तादाद में भी हो सकते हैं। एक ताबई ने याद रखा, बाकी के ताबईयों की बात हम तक नहीं पहुंची। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी पहुंचे, 2 भी पहुंचे, 2 ताबई भी ने, वो हो सकता है बाज हदीसों को 70 ताबई से हमको मिली है, बाज हदीसें हमको 1 ताबई से मिली है, तो दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? 3 में अगर एक बात अद्दीन और नसीहा मान लीजिए कि 3 ताबई ने से हमको मिली, और कोई और हदीस ला तगज़ब जो है ना, मान लीजिए कि एक 70 ताबई से मिली, तो दोनों में नामों में फर्क होता है मुहद्दिसिन के पास या नहीं होता है? फर्क होता है। हाँ, जी फर्क फर्क होता है। होता है। तो इसलिए फर्क कह होता है रहे हैं कि हाँ, इसको कहते हैं हर तबके में, यानी सहाबा का तबका अलग, ताबईन उनके बाद उनके शागिर्दों, ताबई का तबका अलग, तबे ताबई का तबका अलग, अतबाए ताबई का तबका अलग। हर तबके में अगर रावी कितने होना है, किसी भी एक तबके में, हर तबके में जरूरी नहीं, किसी भी एक तबके में अगर 3 हो या उससे ज्यादा हो, 3 रावी, 3 ताबई जमा हो गए समझे, तब उसको मशहूर कहेंगे या अजीज कहेंगे? मशहूर कहेंगे। तो अभी जो खातून ने मुझसे सवाल किया था उनको क्लियर हो गया 3 का मतलब क्या है, क्या मतलब है 3 का, तो समझ में आ गया उनको भी? जी शेख, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्लास में कोई ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया मशहूर, हदीस मशहूर, तो बताइए, बिला झिझक बताइए, इसमें शर्माने कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वो टीचर हूं कि क्लास के सबसे कमजोर तालिबे इल्म को भी सबके बराबर लाना मेरा शौक है। मैं किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ क्लास में कि भाई ये कमजोर है तो इनको नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ज़हीन लोग, मतलब सिर्फ जो लोग पाबंदी से आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बात औक़ात एक आदमी को कमजोरी इस वजह से होती है कि हो सकता है कि उन्होंने जो उनको मुनाजा करने का टाइम नहीं मिला, हो सकता है वो बहुत ज़हीन होंगे, लेकिन उनको कभी वहां पर हो सकता है उनकी अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से डिस्टर्ब होंगे, हो सकता है उनको बुखार होने की वजह से डिस्टर्ब होंगे, हो सकता है कि उनके कुछ और भी कमिटमेंट होंगे शौहर और बच्चों को लेकर, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होंगे और उनको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं उनको कमजोर इस माने में नहीं कह रहा हूँ कि दिमाग में कमजोर है, नहीं, उनको याद करने का मौका नहीं मिला, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में ही इतना समझा दूं कि आपको होमवर्क करने की जरूरत ना पड़े। क्या ये अच्छा तरीका है या मैं पढ़ा के छोड़ दूं? जी शेख बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। फिर अब बताइए, क्लास में अभी भी कोई है जिनको हदीस मशहूर समझ में नहीं आई, या रावियों की तादाद क्या है? रावियों की तादाद मतलब रिवायत करने रिवायत करने का वाले काउंट, यानी कितने रिवायत करे किसी दौर या तबके में, मतलब सहाबा में या ताबईन या तबे ताबईन में, उस तबके में। वेरी गुड। 3 हो या उससे ज्यादा, मतलब हर तबके में 3 या उससे ज्यादा। हाँ, तो किसी भी एक तबके में भी हो तो बस है, हर तबके में, अगर हर तबके में होना जरूरी नहीं, किसी एक तबके में भी आया तो उसको मशहूर नाम देते। फिर किधर चलता रहे पानी, मोटर मगर चलाई। तवातुर के हद तक ना पहुंचे, मतलब मगर ऑडियो म्यूट कर दीजिए अगर कहीं बाहर मगर तवातुर के हद तक ना पहुंचे, कौन समझाएगा क्या मतलब? 10 तादाद 10 तक ना पहुंचे, वो एक रावियों कौल की के तादाद मुताबिक, किसी वो एक तबके कौल में। के मुताबिक है। और एक कौल क्या है कि भाई 10 से भी ज्यादा, 10 हो तो भी इत्मीनान अगर नहीं हुआ तो उससे ज्यादा। हाँ, तो इसका 10 हो गया लेकिन यकीन पैदा नहीं हुआ, वो 10 ऐसे लेवल के रावी नहीं है कि जिन पे यकीन पैदा हो जाए, तो फिर 10 की कैद भी नहीं है बाद उलमा के पास, राइट? ठीक है शेख। जी हाँ। हदीस से अजीज कौन याद करवाएंगे? कोई शेख जेंट्स, मैं करवाती हूँ। कोई जेंट्स को भी मौका देंगे। क्या हो रहा, फीमेल इतने ज्यादा हैं, हमारे जेंट्स जो भाया है ना शर्मा के आगे नहीं बढ़ रहे, तो ऐसा मत जी करिए, शेख उनको भी मौका बिस्मिल्लाह, दीजिए, क्योंकि भाई हम आए तो हमारे आगे। सिर्फ खवातीन मुहद्दिस बन जा रहे हैं, आखिर में ऐसा नहीं हो जाना, हमारे जेंट्स को भी मुहद्दिस बनना है। जी जी इंशाल्लाह। पढ़ाइए आप।
कोई जेंट्स आगे बढ़े, हदीस से हदीस सबको याद करवाएं और समझाएं। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में दो हो। अच्छा रुक रुक के बोलिए, याद हुए जैसा सबको। अजीज 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 5 टाइम बोलिए। अजीज अजीज, हदीस अजीज, हदीस अजीज, हदीस अजीज, हदीस अजीज, हदीस अजीज। कोई यहाँ पर है जिनको अजीज अभी तक याद नहीं हुआ? नहीं है तो आप बगैर झिझक के बोलिए, टेल द ट्रुथ, बोलो हक्कन, सच बात बोलो, चाहे कड़वी लगे। कोई ऐसे हैं जिनको अजीज याद नहीं है वर्ड? चलिए याद है सबको। मशहूर याद नहीं है किसी को? याद है सबको। गरीब याद नहीं है शेख किसी याद को? है, शेख याद है। अच्छा मां। आहाद किसी को याद नहीं है? ये आहाद की किस्में या मुतवातिर की? ये तीनों किस्में, मशहूर, अजीज, गरीब, ये आहाद की किस्में या मुतवातिर की? أحد ये अहाद की। ahad की। तो आहाद वो है जो मुतवातिर तक ना पहुंचे, लेकिन दोनों के अंदर आहाद में जन्ने गालिब यानी यकीन के करीब तक का माना आता है, शक का माना नहीं आता। जो लोग जन का माना शक करते हैं वो गलत बोलते हैं। जन्ने गालिब माने यकीन के करीब तक आता है, लेकिन हुक्म ये है कि दोनों पर भी अमल किया जाएगा। उसमें फर्क करना, अमल नहीं करना, कहना गुमराही का दरवाजा है। आप हदीसों की एक बहुत बड़ी तादाद से महरूम हो जाएंगे। चलिए हदीस से हदीस याद करवाइए भाई। बिस्मिल्लाह। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में दो हो। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में दो हो। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में दो हो। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में दो हो। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में दो हो। हदीस गरीब किसी को याद है? याद करवाई। कोई कौन आगे बढ़ाएंगे? अब वो खातून जो आगे बढ़ रहे थे अभी, वो याद करवाई। अभी ये खातून आगे बढ़ रहे थे जिनको मैंने स्टॉप किया, अब आप अपना हक ले लीजिए। जी शेख, हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में एक हो और उसे फर्द भी कहते हैं। फर्द। हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में एक हो। किसी दौर या तबके से मुराद सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, ताबईन के दौर में और इत्बा ताबईन के दौर में या उसके बाद में किसी भी तबके में एक हो और उसे फर्द भी माशाअल्लाह, आप कहते हैं। याद करवा रहे हैं, आप समझा भी रहे, याद भी करवा रहे हैं, और अच्छा स्टाइल है। देखिए जितना अच्छा है उस्ताद, मैं आप लोगों को ना सिर्फ तालिब इल्म बना रहा हूँ बल्कि आप लोगों को उस्ताद भी बना रहा हूँ कि फ्यूचर में कैसे पढ़ाना है। मैं आपको ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा अशरफ। हदीस गरीब क्योंकि जिसके रावियों की दुनिया में इल्म वाले बहुत होते हैं, लेकिन टीचिंग ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। खाली इल्म होना काफी नहीं है, वरना आपका फायदा नहीं पहुंचेगा लोगों तक। ठीक है जी शेख। जी। हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में एक हो और उसे फर्द भी कहते हैं। हदीस गरीब फर्द नहीं, फर्द फर्द शेख, फर्द या फर्द? रा पे जज़म है। फर्द की जमा अफराद, फर्द, ये फर्द है। ठीक है, फर्द। हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में एक हो और उसे फर्द भी कहते हैं। हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में एक हो और उसे फर्द भी कहते हैं। हदीस गरीब। कोई सुना सकते हैं? जी शेख, मैं ही सुनाती हूँ। अच्छा सुना दीजिए। हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में एक हो और उसे फर्द भी कहते हैं। बाकी के भी सुना सकते हैं कोई? अखबार अहाद की 3 किस्में, मशहूर, अजीज, गरीब, बगैर देखे सुना सकते हैं? जी शेख। अच्छा सुनाइए।
सुनाइए। अच्छा, मशहूर जिस के रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 3 हो या उससे ज्यादा हो, ज्यादा अदद में हो मगर तवातुर की हद तक ना पहुंचे, और उसे मुस्तफीज भी कहा जाता है। हदीस अजीज जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 2 हो। हदीस गरीब जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 1 हो और उसे फर्द भी कहते हैं। माशाअल्लाह। कोई मुतवातिर की तारीफ सुना सकते हैं? पहले 5 मरतबा कोई पढ़ा दीजिए सबको, उसके बाद सुनेंगे। कोई आगे बढ़कर देखकर 5 मरतबा पहले रटा दीजिए सबको। अच्छी बात है। शेख मैं पढ़ाऊं? अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो आगे बढ़े। शेख अखबार मुतवातिर मैं सुनाऊं से? हाँ बोलिए, याद है आपको? जी सर, अखबार मुतवातिर। अस्सलाम वालेकुम शेख। सुनाइए, याद है तो सुनाइए। जी, अखबार मुतवातिर हदीसों को कहते हैं जिन्हें हर दौर यानी सनत के आगाज में पूरी उतरती ना हो तो यह तादाद में तवातिर की हद तक ना पहुंचे। नहीं, आप देख के सुनाएंगे या बगैर देखकर? देख के शेख। हाँ तो मैं बड़ा करता हूँ। सुनाइए देख के। जी, अखबार मुतवातिर इन हदीसों को कहते हैं जिसे हर दौर में यानी सनत के आगाज, वस्त और आखिर में इतनी बड़ी तादाद में रिवायत किया गया हो कि इनकी गलत बयानी और झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिन ना हो। याद करा रहे जैसा पढ़िए, अभी आप जो पढ़ रहे ना, आप खुद अकेले पढ़ ले, सुनने वालों को भी याद हो जाए ऐसा याद पढ़ाइए। जी शेख। अखबार मुतवातिर इन हदीसों को कहते हैं जिन्हें हर दौर में यानी सनत के आगाज, वस्त और आखिर में इतनी बड़ी तादाद में रिवायत किया गया हो कि इनकी गलत बयानी और झूठ पर मुत्तफिक होना नामुमकिन ना हो। हाँ, उल्टा हो गया माना, होना मुमकिन ना हो। जी ऐसा पढ़ना। उन हदीसों को कहते हैं, ऐसा दरमियान में थोड़ा सा स्ट्रेस करने से दिमाग के अंदर जाती। जी अच्छा। अखबार मुतवातिर इन हदीसों को कहते हैं जिन्हें हर दौर में यानी सनत के आगाज, वस्त और आखिर में इतनी बड़ी तादाद में बड़ी निकालना, सेम मोनोटोनस रहा तो सो जाते। जी, यानी बोलते होते, अचानक आंख खुल जाती। हाँ, ज़लज़ला आया शायद बोल के उठ जाते। यानी सनत के आगाज, वस्त और आखिर में इतनी बड़ी तादाद में रिवायत किया गया हो इनकी गलत बयानी और झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिन ना हो। क्योंकि मेरे एक साहब ने मिलकर कहा मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हर क्लास में सोया शेख, लेकिन आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिए, सोने नहीं दिए मेरे को, आप बहुत डिस्टर्ब करे। जी पढ़ी। जी, अखबार मुतवातिरा इन हदीसों को कहते हैं जिन्हें हर दौर में यानी सनत के आगाज, वस्त और आखिर में इतनी बड़ी तादाद में रिवायत किया गया हो कि इनकी गलत बयानी और झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिन ना हो। तो तादाद जो है एक कौल के मुताबिक 10 होना है किसी भी तबके में ना, लेकिन दूसरा जो असल राजे ये है कि अदद नहीं देखा जाएगा बल्कि 10 से ज्यादा भी हो और साथ में यकीन हासिल हो। क्या होना? यकीन भी हो और ऐसा यकीन के जिसके झूठ होने का चांस ना हो। जी चलिए, किसी को याद हो गया बगैर देखकर सुना सकते हैं? मैं पेज हटा रहा हूं। मुतवातिरा, मुदस्सर साहब सुनाइए। हम सुनाए? यहाँ पर 2 लोग हाथ उठाए। मुदस्सर साहब जी सुनाइए। अखबार मुतवातिरा उन हदीसों को कहते हैं जिसको हर दौर में यानी सनद के आगाज, वसत और आखिर में इतनी बड़ी तादाद में रिवायत किया गया हो जिसके झूठ होने पे मुत्तफिक होना मुमकिन ना हो। वेरी गुड। और कौन सुनाएंगे? शेख मैं सुनाऊं?
ذرا میوٹ کر دیجیے گھروں میں، ہر چیز سے چھٹی ہے کل. جن کے گھروں میں باتیں ہو رہی ہیں وہ میوٹ کر دیجیے، یا تو میں کر دیتا ہوں جی. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہاں شیخ میں سنوں؟ ہاں بولیے. اخبار متواتر ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز، وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو. بہت اچھا. اور کوئی سنا رہے تھے؟ درمیان میں ان کی بات کٹ گئی. جی شیخ میں سنا رہی. ہاں سنائی. شاید روبینہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ جس جس ملک میں ہے، جس جس شہر میں ہے، وہاں پر آپ سب کو اس شہر کی بڑی محدثہ بنا دے. انشاءاللہ آمین. بنیں گے آپ لوگ محدثہ، دعا کیجیے. محدثہ بنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، محدث بھی بنیں گے. جی شیخ انشاءاللہ. جینٹس کو اللہ محدث بنا دے، آپ کی فیمیلز دعا کو اللہ سے. محدثہ بنا دے. جی. آمین انشاءاللہ. لوگ ضعیف حدیثیں بہت پھیلا رہے ہیں، آپ لوگ روکیں گے اس وبا کو انشاءاللہ مل کر. جی انشاءاللہ. جی سنائیے. جی شیخ سناؤ. سنائیے. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز، وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو. یعنی کہ اتنی کثیر تعداد میں، یعنی علماء کا ایک قول ہے کہ ہر دور اور طبقے میں اتنی کثیر تعداد نے ان کو روایت کیا ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، اور اس میں یقین مطلوب ہے. عدد مقصود نہیں، یقین مطلوب ہے. سبحان اللہ. عدد بھی چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. عدد 10 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہی کم از کم 10 کا کم از ہونا کم 10 ضروری تو نہیں ہے. بول سکتے، لیکن 10 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے. 10 سے بڑھ کے ہونا چاہیے. اور اصل میں تعداد کے ساتھ ساتھ یقین اہم چیز. کیونکہ اگر جھوٹے 70 جمع تو قبول کر لیں گے آپ بات؟ نہیں. جی شیخ. اگر 70 جھوٹے لوگ مل کر حدیث کے نام پر سنائیں گے تو آپ مان لیں گے؟ نہیں شیخ. آپ تو جھوٹے بھی بتائیں گے تو بھی نہیں مانیں گے. ہاں تو اس لیے کہتے ہیں یقین بھی ہونا، کیونکہ ثقہ ہونا ہے، وہ نیک لوگ ہونا ہے، نیک لوگ ہونا ہے جن کے نیکی اور جن کے جھوٹ نہ بولنا، وہ بھی ثقہ ہونا ضروری ہے، بھروسے مند. انشاءاللہ. تو جھوٹے راوی 70 جمع ہو جائے تو مان لیں گے کیا؟ نہیں. ہاں نہیں شیخ. بہت اچھا. اب یہ کون یاد دلائیں گے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی یاد دلائی. شیخ آپ نام لیجئے، چونکہ جو لوگ سنا رہے وہی لوگ سنا رہے ہیں. ہاں چلیے یہ اچھی، چلیے یہ بھی اچھا ہے. مسکان سلطانہ 1، اور اسد بیگ 2، اور بلال عارف 3، علینا عابد 4. چلیے آپ لوگ سنائیے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے. ہاں پڑھیے، نئے لوگوں کو موقع دیں گے. نئے تازہ دم سپاہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی حاضر ہو. سنائے شیخ ہم. ہاں سنائے. یاد نہیں، سنانا نہیں ہے، یاد دلانا ہے 5 ٹائم دیکھ کر. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں.
حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ چلیے نیکسٹ ہمارا 4 نام لیا تھا، حدیث مرفوع یاد دلائیے۔ ساؤنڈ بند کریے، ساؤنڈ بند کریے۔ اگر آپ کچھ دے رہے ہیں زکوٰۃ سے تو پھر میرے کو بولو، ٹھیک ہے؟ میں اکاؤنٹ نمبر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ساؤنڈ بند کریے، کوئی ساؤنڈ بند کریے پلیز، ساؤنڈ بند کریے۔ آپ لوگ گھر کی باتیں ادھر تک مت سنائیے، راز میں رکھیے باتیں۔ جی حدیث مرفوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علم حدیث کی اصطلاح میں زور سے بولی، ہاں زور۔ حدیث جی مرفوع، شیخ، دیکھیے ٹھہریے، حدیث کوئی مرفوع خاتون شروع کیے ہیں، 1 منٹ، اس کے بعد آپ۔ جی علم حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حدیث سے مراد، یہاں علم سے پڑھیے۔ حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حدیث سے مراد قول، فعل یا تقریر اور صفات ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو، صراحتاً یا حکمت، صراحتاً یا حکمت۔ چلیے 5 ٹائم بولیے۔ یا حکمت۔ ہاں، مرفوع میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اس قول کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اصل پوائنٹ ہے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ باقی کے جو الفاظ ہے نا، قول یا فعل یا تقریر یا صفت، یہ تو آپ کو پہلے یاد کر لیے تھے حدیث میں، یاد ہوگا آپ کو، نہیں؟ اصل اس میں جو ٹاپک ہے، دیکھیں دوسرے لوگ ڈسٹرب کر رہے، کوئی انمیوٹ نہیں کرے، تو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو حدیث قدسی۔ چلیے 5 ٹائم بولیے، 5 ٹائم اس کو بولیے۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو مرفوع ہے، نسبت اللہ، اس کو 5 ٹائم بولیے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف ہو تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ چلے کسی کو مشکل ہے حدیث قدسی اور حدیث مرفوع میں فرق کرنا ہے؟ ٹیل دا ٹروتھ، ابھی کلاس میں کسی کو بھی مشکل ہے حدیث قدسی اور حدیث مرفوع میں کچھ کنفیوژن ہے کسی کو ابھی بھی؟ کوئی بھی ہے تو بتائیے۔ شیخ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو صراحتاً یا حکمن، تو صراحتاً یا حکمن سے کیا مراد؟ سمجھنے کی تعلق، لیکن اصل چیز فرق کس سے ہو رہا ہے؟ نسبت سے۔ ہاں، نسبت حدیث قدسی میں نسبت کس کی طرف ہوتی؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ۔ اللہ اتنا پیارا بولے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے آپ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا۔ ایک تھے کوئی ایک بہت بڑے عالم تھے، کاکا عمر، جو ان سے جا کر سیکھتے تھے، وہ اللہ ایسا کہتے تھے کہ جس سے کہ ان کو رونا آتا تھا اور اللہ کی یاد آتی تھی۔ چلیے ماشاء اللہ۔ تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے حدیث قدسی میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حدیث مرفوع میں نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث موقوف میں کس کی طرف نسبت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کی طرف۔ مقطوع میں کس کی طرف ہوتی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اب یہ 4 ورڈ کوئی 10 مرتبہ دہرائے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ کل کے دن مرفوع، موقوف، یہ بولیے حدیث قدسی میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، حدیث مرفوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا جو ہے نا کوئی 10 مرتبہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر، یا بھوک لگ رہی؟
चलिए हदीस बोलिए ताकत कुदसी की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मकतू की निस्बत मौकूफ सहाबा कराम की तरफ होती तीसरा है। मौकूफ है और मकतू नहीं है मौकूफ है मौकूफ हदीस अच्छा मौकूफ की निस्बत सहाबा कराम की तरफ होती है। और शेख चौथा क्या है? हदीस मकतू तो मकतू हदीस हदीस मकतू की निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी की बोलिए निस्बत अल्लाह की बोलिए तरफ होती है। ताकत से बोलिए हदीस ताकि सबको याद हो जाए, इस नियत से बोलिए कि सबको याद हो जाए, क्लास में ऐसा जी एक भी बाकी ना रहे कि मैं बोलूंगा मौको जी मकतो, ऐसा फास्ट फास्ट बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। मैं भी सबको उल्टा सीधा पूछने वाला हूँ, रैंडमली देखते हैं आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते। चलिए बिस्मिल्लाह। शेख में जी याद कर शेख हाँ एक आगे, एक हदीस खातून आगे कुदसी बढ़े की ना, एक खातून आगे बढ़े, हदीस 10 मर्तबा जी बोलिए और बाद हदीस में आप कुदसी की लोग नहारी खा लीजिए, बाद थक गए बाद। जी हाँ, हदीस कुदसी की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू की निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ की निस्बत सहाबा कराम की तरफ होती है। हदीस मकतू की निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मरफू मौकूफ की निस्बत सहाबा कराम की तरफ होती है। हदीस यहाँ पे मकतूम की निस्बत शेख ताबईन एक की तरफ यहाँ पे होती है। हदीस की निस्बत, ये हदीस खुदसी की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है या हदीस खुदसी में निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है? एक ही माना है, हदीस हदीस से एक ही माना है। हदीस कुदसी में निस्बत जो है अल्लाह की तरफ होती है, हदीस मरफू में निस्बत उस पैगाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि निस्बत, वसल्लम की वो तरफ होती मतन या पैगाम की निस्बत। तो समझना वही है, मैं अल्फाज कम कर रहा हूँ ताकि याद होने में आसानी हो जाए। जी है। जी जी शेख जी दोहराऊं? हाँ दोहराई। हदीस हदीस कुदसी की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ की निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू की निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ की निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू की निस्बत ताबईन की तरफ हदीस होती है। मक्तूम में बोल दीजिए, जैसा एक खातून ने हदीस अभी पॉइंट आउट किया ना कि जी निस्बत बोलने पर हदीस खुदसी में बोल दीजिए ताकि वो कंफ्यूजन जी दूर हो ठीक जाए। है जी ठीक है। हदीस मकतू में निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी में निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू में निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू में निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी में निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू में निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू में निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी में निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में हदीस मरफू में निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू में निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी में निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू में निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू में निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी में निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू में निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस मकतू में निस्बत ताबईन की तरफ होती है। हदीस कुदसी में निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। हदीस मरफू में निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हदीस मौकूफ में निस्बत सहाबा की तरफ होती है। हदीस शुक्रिया मकतू में निस्बत शुक्रिया। ताबईन की तरफ होती है। एक पे इतना बोझ डालना सही नहीं दिख रहा। कोई और भी आगे बढ़ सकते हैं या सबको यहाँ पर कोई है जिनको अभी तक याद फर्क नहीं मालूम हुआ, मरफू मकतू मौकूफ, कोई है जिनको अभी तक फर्क नहीं मालूम? तो खुला खुला बोलिए ताकि हम सबको याद दिलाए। हमारा मकसद है, वी आर हियर टू हेल्प यू, आपको मदद करने के लिए ये क्लास है। कोई है अस्सलाम वालेकुम जिनको शेख। कुदसी? जी जी ये बाय डेफिनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया,
لیکن بائی ایگزامپل میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا کلاس ابھی آفس سے آ کے واپس, تو یہ اس سے پہلے آپ اٹینڈ کیے ہیں کلاسز سے پورے؟ جیسے جی اس میں ہوتا ہے قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے. تب یہ حدیث قدسی ہے یا مرفوع ہے؟ نبی اکرم میں بتا پھر سے دوہرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا رہے گا. تو ظلم کرنا جائز ہے کسی پر بھی؟ نہیں. تو اب یہ بتائیے حدیث قدسی ہے یا حدیث مرفوع ہے؟ حدیث قدسی. اچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ حدیث مرفوع ہے یا حدیث قدسی ہے؟ حدیث مرفوع. کلاس میں کوئی ایسے ہیں جن کو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا؟ الظلم ظلمات, اللہ نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرا. کلاس میں سے کوئی ہے جو حدیث قدسی کیوں ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو بتائیے. شیخ ہاں جی بولیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کلاس میں ایسے کوئی ہیں؟ دیکھیں میں جملہ بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا سب سے سوال کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ظلم اندھیرا ہوگا. یہ حدیث قدسی ہے, مرفوع نہیں ہے. کیا کلاس میں ایسے کوئی ہے جن کو یہ سمجھ میں نہیں ہے بات؟ شرمانے کی بات, الحمدللہ شیخ, شرمانے کی بات نہیں ہے, سب کو سمجھ میں آ گئی بات. مرفوع اور موقوف سمجھنا ہے شیخ. مرفوع بھی اب سمجھ میں آ گیا. موقوف کی بات یہ ہے کہ موقف کی بات یہ ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی تیمم کر کے. اب یہ بولیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کا یہ جو فعل یہاں بتایا جا رہا ہے, تو یہ جو ان کا عمل بتایا جا رہا ہے, یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے یا حدیث قدسی ہے؟ موقوف. اچھا, کوئی بتا, کلاس میں کوئی ایسے ہیں جن کو یہ موقوف کیوں ہے سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا شیخ, کیونکہ اس میں حضرت ابن عباس کا بھی ذکر ہے اور ان کی نسبت صحابہ کی طرف ہو جاتی ہے, رائٹ؟ ہاں, تو صحابہ کی طرف نسبت, ان کے فعل کی یا قول کی نسبت, اگر کوئی بھی قول کی یا فعل کی نسبت اگر صحابی کی طرف ہو تو وہ موقوف ہے یا مرفوع ہے یا حدیث قدسی ہے؟ موقوف. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ابھی؟ جی. ہاں. اسی طریقے سے جو ہے تابعی کہتے ہیں, موطا میں آپ بار بار پڑھتے, امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فتوے نقل کرتے, ایک تابعی نے یہ فتوا دیا, ایک تابعی نے یہ فتوا دیا, امام زہری رحمت اللہ علیہ نے یہ فتوا دیا, سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ نے فتوا دیا. تو اب یہ ان کا قول ہے. فتوے کس کے ہیں یہاں پر موطا میں؟ تابعی کے ہیں. تو یہ تابعی کے فتوے کو مقطوع کہیں گے, موقوف کہیں گے, مرفوع کہیں گے, حدیث قدسی کہیں گے؟ مقطوع کہیں گے. اچھا, کلاس میں سے کوئی ہے جن کو مقطوع ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ جی شیخ الحمدللہ. نہیں, جن کو سمجھ میں آ گیا وہ لوگ مت بولیے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کلاس میں جو سب سے کم فیل کر رہے ہیں اور ایسا ارے میرا کیا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کی مدد کریں, سب مل کر ایک دوسرے کلاس میں مدد کریں تو اللہ کے پاس ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا. حدیث کیا ہے, جب تک تم اپنے کمزوروں کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا ہے, هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم. جی ہاں, ریپیٹ کرنا کیا ہے کہ اگر یہ قول یہ آپ بولتے ہیں بات کس کی ہے بھائی, حدیث میں آیا ہے, قرآن میں آیا تو خیر آپ کہہ دیتے کلام اللہ ڈائریکٹ, لیکن حدیث کی کتابوں میں اگر یہ قول یا ورڈ یا کوئی بھی یہ پیغام اللہ نے کہا بول کر ایسا آیا حدیث کی کتابوں میں, اللہ نے کہا, تو وہ قدوس. قدوس کس کا لقب ہے, اللہ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. اگر وہ قول یا وہ فعل
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ایسا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ایسا کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات. تو یہ مرفوع ہے یا حدیث، یہ حدیث مرفوع ہے یا حدیث قدسی ہے؟ مرفوع. حدیث مرفوع. اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس آیت میں مراد ہے، یہاں پر کفر سے مراد کفر اکبر نہیں بلکہ چھوٹا کفر مراد ہے. تب یہ قول، یہ جو جملہ ہے، یہ مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے؟ شیخ رینڈملی کسی کا نام لے کر کے پوچھئے شیخ آپ. چلیے دیکھتے ہیں. ہاں میں پر ایک مرتبہ کسی نے کہا ریپیٹ کرو، میں ریپیٹ کرتے پوچھنا لا. اچھا، ایک تابعی کہتے ہیں، مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے. تو مجاہد تابعی ہے صحابی ہے؟ تابعی ہے. اب انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں ایسا کہا، تو اب یہ جو انہوں نے کہا یہاں پر مجاہد نے کہا، تو یہ مقطوع ہے، موقوف ہے یا مرفوع ہے؟ مقطوع. ہاں. السلام علیکم شیخ، ایک اور ڈاؤٹ ہے کہ ہاں فرما. حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کا مجموعہ ہم کو کیسے پہچانا؟ کیا حدیث کی کتابوں میں الگ سے ان کا سیکشن رہتا کیا، جیسے صحیح بخاری ہے؟ نہیں ویسا نہیں ہوتا. ایک باب باندھتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندھتے، بات کے بولتے قال عائشہ، پھر اس کے بعد لکھتے قال مسروق، پھر اس کے بعد بولتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ کو ناموں سے پہچاننا پڑتا کہ مقطوع ہے یا موقوف ہے یا حدیث. اب یہ بولیے قال عائشہ، پھر اس کے بعد قال مسروق، پھر اس کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں میں کون سا کیا کیا نام دیں گے؟ بولیے. ابھی آپ نے جو سوال کیا آپ ہی بولیے. قال عائشہ مطلب حدیث موقوف رہے گا شیخ. ہاں جی. پھر قال مسروق تابعی ہے. اب بتائیے. حدیث مقطوع ہوگا، اس کے بعد مقطوع ہو پھر جائے گا، مرفوع کی طرف مقطوع ہو جائے گا. اور جی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مرفوع. ہاں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب باب باندھتے تو صحابہ کے فتوے، تابعی کے فتوے، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں تینوں بھی نقل کرتے کئی جگہوں پر. خاص طور سے اگر آپ رمضان کے مسائل پڑھیں گے نا تو وہاں پر ہے دیکھیں روزہ کس سے ٹوٹتا اور کس سے نہیں ٹوٹتا. تو وہاں پر 40 فتوے نقل کیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. کتنے فتوے نقل کیے؟ 40. صحابہ کے بھی نقل کے، تابعی کے نقل کے، اتنے نقل کے حدیث اس میں ایک یا دو ہے. تو اب جو لوگ، جن لوگوں کو ایسا پتہ نہیں چلتا تو وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ میں صحیح بخاری میں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائے تھے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. پھر سوال کر رہا ہوں میں، جواب کم جواب ہے. دیکھیں امام صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھتے بعض لوگ اور ان کو فرق نہیں معلوم ہوتا. وہ سمجھتے کہ اس کتاب میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سمجھتے، حالانکہ کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے آپ کو یا صحابہ اور تابعین کے ہی ملتے؟ تابعین کے بھی ملتے. تو پھر اگر باہر جا کر کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اگر بول دے تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. تو اس لیے آپ کو، تو پھر آپ کو حدیث موقوف، حدیث قدسی، حدیث مقطوع، حدیث موقوف، یہ فرق جاننا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، تھوڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. انتہائی ضروری ہے یا تھوڑا ضروری ہے؟ انتہائی ضروری ہے. ہاں. تو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کو یہ فرق نہیں معلوم ہے. تو کیا آپ پھر نہیں معلوم جو ہے ان کو آپ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، مسروق تابعی اپنے گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا کر اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی سرگرمیوں کا علم نہ ہوتا. تب یہ موقوف ہے یا مقطوع ہے یا قدسی؟ مقطوع ہے. کلاس میں سے کوئی ہے جن کو مقطوع مشہور اس میں جو ہے نا ایک دم ان کا دماغ پورا گھوم جا رہا ہے اور ان کو یاد ہی نہیں ہو رہا ہے، اور مقطوع کو موقوف سمجھ رہے ہیں، موقوف کو قدسی اور قدسی کو مرفوع؟ ایسا کوئی ہے کلاس میں
हमारी बहन या भाई, तो हम उनको जो है फिर से समझाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ऐसे कोई है कि मक्तू, मौकूफ, मरफू, कुदसी ऊपर नीचे हो रहा है दिमाग में कुछ ऐसा? एक डाउट है शेख। हाँ बताइए। हम लोग कैसे ये पहचान सकते हैं कि कौन सहाबी है कौन ताबई है? हाँ, वो उसके क्योंकि लिए जब आपको हम जो है, मालूम करेंगे तो ही मालूम होगा ना तो कौन वो सा किताब, एक मौकूफ तकरीब है। तहजीब एक किताब है, किताब का नाम क्या है? तकरीब तकरीब तहजीब। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जी 9000 रावियों के बारे में जमा कर दिया। कितने रावियों के बारे में? 9000। तो उसमें उन्हें बताते हैं सहाबी में से है, ताबई में से है, तबे ताबई में से है, वो बताते हैं आपको। पूरे कुतुब सित्ता के, कुतुब सित्ता माने 6 किताबें हदीस की। सही बुखारी, मुस्लिम, सही मुस्लिम, सही सुनन मुस्लिम। तिरमिजी। तो जी कुतुब सित्ता में जितने रावी आए हैं बड़े मशहूर, 9000 से ज्यादा रावियों के बारे में कौन सहाबी है, कौन ताबई है, पूरा सेग्रीगेट करके कौन बताते हैं? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह। इमाम इब्न हजर राहिमहुल्लाह। शेख ये किताब जो है उर्दू में है, अरबी में है? हाँ, ये किताब जो अरबी में है वक्फिया.com पे अवेलेबल है फ्री में। वक्फिया, आपको अरबी में कोई भी किताब फ्री में डाउनलोड करना है तो कौन सा वेबसाइट है? वक्फिया। वक्फिया, WAQ, वक्फ, FIAYAH, वक्फिया। वक्फिया। तो फिर वक्फ, हमको वक्फ उन मान 9000 सहाबा इकराम या फिर ताबई के नाम नेम्स को अलग अलग करके याद करना पड़ेगा शेख पहले? नहीं, याद नहीं आपको, याद तो करना मुश्किल है आज के दौर में ना। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जब भी नाम आता है तो वो तकरीब उसमें से तहजीब में ढूंढ जाके लेते हैं। ढूंढ लेते। तकरीब अच्छा आजकल तो वेबसाइट आ गए ना, हदीस के बहुत सारे वेबसाइट है। आप गूगल में जो है ना नाम डालते हो, सहाबी है, ताबई है, सब वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट आ गए। islamweb.net आ गया है, और इसी तरीके से जो है ना हदीस हदीस .org एक है, sunnah.org एक है। अरबी में बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट है, उर्दू में भी islamhouse.com पर है। गूगल में भी आप अगर लिखते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट आपको पता चल जाता है कि साबी है या ताबी है। तो वो पढ़ते पढ़ते आपको इतना पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाता बाद में कि साहबी कौन है, ताबी कौन है। कभी पता नहीं चला तो आप किताबें खोलते समझे। ठीक है शेख, एक और मर्तबा किताब का नाम बोलिए शेख। इब्ने हजर। तकरीब, तकरीब माने करीब करना, कुर्ब, कुर्ब माने अरबी में, उर्दू में बोलते हैं ना करीब। करीब से जी क्या वर्ड है? तकरीब, तहजीब। तहजीब एक जी किताब का नाम है, तकरीब तहजीब। तहजीब जो है 6 जिल्दों में थी। कितने जिल्दों में थी? 6। तो 6 जिल्दों में उसको उन्होंने एक वॉल्यूम में मुख्तसर किया, इसलिए उसका तकरीब तहजीब। तहजीब को मैंने करीब कर दिया। तहजीब एक किताब का नाम है जिसके अंदर वो भी इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की है। लोगों ने आकर कहा इमाम 6 जिल्दे कौन, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस आसान नहीं था ना, तो लिखना पड़ता था। तो बोले इतना डिटेल में नहीं, एक रावी के बारे में सहाबी है या नहीं है, या ताबई है तो सिका है या नहीं है, 2 लाइन में लिखो, 10-10, 20-20 लाइन में मत लिखो बोलते। वो लोग बेचारे 2-2 लाइन में लिखे, तो फिर छोटी किताब बनी। वो किताब जो है इतनी मशहूर हुई, हर हदीस पढ़ने वाले के घर में जो भी रावियों के बारे में जानता है, अगर उसके पास तकरीब तहजीब नहीं है या तकरीब तहजीब नहीं मालूम है, तो वो आदमी को कहते तुमको रावियों के बारे में मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं रावियों के बारे में जानता हूं और उसको तकरीब तहजीब नहीं मालूम है, तो सब लोग बोलते ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको नहीं मालूमात। मुहद्दिसिन झूठ कैसा पकड़ते? अवामुन्नास में कोई आदमी बड़ा गुतरा डाल लेके करके 1 लीटर सुरमा डाल लेके आके मैं मुहद्दिस हूं बोल के बैठ गया समझे, तो उसको पकड़ना है तो क्या बोलते? तकरीब तहजीब क्या है पूछते। वो बोलेगा नहीं मालूम। तकरीब बोले तो वलीमा की तकरीब क्या पूछा समझो। पकड़ लेना उसको, वो गांव से भगा देना। आप लोगों को मैं तेज कर दे रहा हूं, आप लोगों के दिमाग के छुरी और तलवारों को मैं तेज कर रहा हूं, ताकि कोई आदमी गड़बड़ करे तो आप लोग पकड़ ले सकते हैं इंशाल्लाह। हदीस के नाम पर कोई गड़बड़ करे तो पकड़ लेने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे इस इल्म को हर दौर में तेज लोग पकड़ के जाहिलों को निकाल फेंकेंगे अपने मुआशरे से। क्या बोले? उनके बातिलों को खत्म कर देंगे, उनके ताविलों को खत्म कर देंगे बोले। तो आप लोग वो तेज तलबा बनना चाह रहे हैं या गल्लेबुल मासूम जो चाहे आके भटका दे?
नहीं शेख तेज बनना चाहते हैं, तेज। वो तेज का मतलब इंशाल्लाह। दहशत गर्दी लड़ाई झगड़े वाले नहीं, हुज्जत कर रहे नहीं मस्जिद, शेख, इल्म में। संजीदा संजीदा अल्लाह कम के बोलना, रसूल लेकिन की काम इल्म की में बात तेज। बोलना, कम बोलना, काम की बात बोलना। लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं लड़ाई झगड़ा नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूँ कि कोई आदमी भटकता हो, भटकाए तो आप उसको भटकाता हुआ ना छोड़े, अदब और तहजीब और संजीदगी और इस्लाह के साथ उसकी कोशिश करें। अगर वो शख्स फिर भी अड़ा रहे तो प्यार मोहब्बत के साथ वहां पर उस मस्जिद से कहे भाई आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप हमारे लोगों को मत भटकाइए। मैं लड़ाई झगड़ा और फसाद ऐसे काम नहीं करना चाहिए, इल्म की बुनियाद पर, ठीक है। अच्छा, क्लास में से कोई है जिनको अभी तक मौकूफ, मक्तू और खुदसी और मरफू समझ में नहीं आया तो बोलिए, हम फिर दोहराएंगे। कोई है? जब तक पूरे लोग बोले, कोई नहीं है बोलेंगे तो मैं खुश हूंगा। कोई है तो शर्माइए मत। अरे शेख को तकलीफ हो रही, नहीं होती। अल्लाह ने मेरे अंदर जितनी ताकत दी है वो इस्लाम के लिए, सहाबा जंगों में लड़कर इंतकाल हुआ ना तो हम पढ़ा कर मरेंगे इंशाल्लाह। जी बोलिए। शेख कोई है? एक सवाल इस पे, एक सवाल है, शायद आगे कवर हो जाएगा होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ कि जैसे कि ताबईन और तबे ताबईन के दौर में कई ऐसे दौर गुजरे जहाँ पे उस कैटेगरी के कुछ लोग शायद जो हमारे असलाफ थे उनकी बातों से थोड़ा सा आगे बढ़ गए होंगे या फिर थोड़ा उसके अंदर मिक्सअप कर दिए होंगे। तो क्या सही बुखारी में वो सारी चीजें कवर्ड है? मतलब सही में इन्होंने सही बुखारी की जो सही है उसमें इन्होंने ये सिर्फ वही अहादीस लिखी हैं जो ताबई तबे ताबई से रेफरेंस्ड है, और इसमें मिक्सअप नहीं है, किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं है। इसको समझने के लिए क्या बुखारी की सही में ये सारी चीजें मौजूद है? मैंने पढ़ी नहीं है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन के लिए आपसे। देखिए, आपको मालूम मुहद्दिसीन जो थे ना, वो किसी को भी इजीली एक्सेप्ट करते थे क्या? नहीं शेख। अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को लिखने के बाद कितने साल जिंदा थे मालूम है? 37। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल के अभी नहीं पहुंचे थे, सही बुखारी लिख चुके थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी कब शुरू करे लिखना? जब उनकी एज 22 इयर्स थी। आजकल तो हम 22 इयर्स में अभी घर बनाने में, शादी करने में बिजी रहते, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 22 इयर्स में सही बुखारी लिखने का उनको कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 22 से लेकर 37 तक कितने साल हुए? 15 साल। जी हाँ, तो दोनों भी याद कर लीजिए, 22 भी याद करिए, 37 भी था, 17 साल। 17 इयर्स लगे सही बुखारी लिखने के लिए। आज हम एक किताब लिखने के लिए एक हफ्ता ऐसे रेटिंग, एक हफ्ता लिखे। मैं बोला समझो मेरी जो बुक है ना, कोई लिख सकते हैं आप लोग अपने हाथों से? हदीस मख्तू का डेफिनेशन अपने हाथों से लिखकर एडमिन को भेजेंगे इंशाल्लाह आप लोग। मैं भेज सकता हूँ लिखिए, जिनको भी शौक है लिखने का, रोमन में, इंग्लिश में या उर्दू में, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अपने हाथों से हदीस मख्तू की डेफिनेशन लिखे, मौकूफ का लिखे, खुदूसी का लिखे, आहाद का लिखे, मशहूर, अजीज, गरीब, ये सब, और इसी तरीके से कौले फैलिए, कम से कम एक 10-12 डेफिनेशन, कम से कम 5 चीजें तो लिखे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शेख मैंने अपनी नोटबुक में मैंने लिखा है ये सारा। माशाल्लाह, आप एडमिन को भेजिए, एडमिन हमको भेजेंगे, हम पूरों को जो है ना बोलेंगे, शेख को जो है ना बोलिए कि क्लास में सबको बताएं। आप लोग अपना नाम मत लिखिए, कोई फोन नंबर या कुछ भी नहीं मत लिखिए, बस अल्लाह ताला के पास इज्जत है, आप लोग का नोट्स भेजिए। जी शेख, इंशाल्लाह। डिजिटली लिख के भेज सकते हैं कि हैंड रिटन ही चाहिए? क्या बोले? डिजिटली मतलब उसकी स्क्रीनशॉट लेके, हाथ से लिखे तो ज्यादा, हाथ से लिखने की एक अलग आपको याद होगा, डिजिटल में लिखेंगे तो याद होता है। शेख जो नहीं, हाथ की राइटिंग है, अगर आपको प्रॉब्लम है, लिखना मुश्किल है तो रोमन में लिखे, अगर वही मुश्किल है तो डिजिटल भी लिखे, कोई बात नहीं। शेख हाथ से जो लिखा है उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें एडमिन को। बस।
तो मेरा पॉइंट क्या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1 महीना नहीं लिखे, 1 साल नहीं, 17 साल। और उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखकर गायब नहीं हो गए। सही बुखारी लिखने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 11 साल जिंदा थे, याहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह 4 साल जिंदा थे, अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह 3 साल जिंदा थे। ये ऐसे क्रिटिक थे कि वो अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ते थे। कहते थे लोगों हदीस मत लो क्योंकि मेरा भाई जो है हदीसें भूल जाता है। ऐसे नेक लोग थे उस जमाने में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं कूफा गया, बसरा गया, हिजाज गया, उस जमाने के 700 मुहद्दिसीन को मैंने चेक करने के लिए मेरी किताबें, मैं अपनी रिवायतें पढ़ पढ़ के सुनाता था। किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया सिवाय 4 हदीसों के, सिवाय 4 हदीसों। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की शरह लिखने के लिए कितने साल लगाए, कोई बता सकते? गेस? शरह माने एक्सप्लेनेशन, तशरीह। 1 सही साल। बुखारी की शरह, सही बुखारी की शरह लिखी उन्होंने 10 से ज्यादा वॉल्यूम, बड़े बड़े वॉल्यूम में। अगर आपको सही बुखारी की हदीस समझना है तो फतहुल बारी पढ़ना पड़ेगा। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह किताब का नाम क्या है? फतहुल बारी। हाँ, तो फतहुल बारी उन्होंने कितने साल लगाए, कोई बता सकते? शेख शायद 15 साल। 1 साल। 25 साल, 25 ईयर्स। कितने साल लगाए? 25। और जिस साल उन्होंने ऐलान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही बुखारी पूरी लिख डाली है, तो उसके अगले साल इंतकाल हुआ। मैं सोचता हूँ अगर ये शेख 25 साल पहले इरादा नहीं करते तो सही बुखारी की इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने को मिलता था क्या? अल्लाह कैसा चुनता है ना, ये देखिए आप, अल्लाह कैसे चुनते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हमको भी चुन ले कोई बड़े काम के लिए। आमीन, हमको भी चुन ले अल्लाह ताला, हमसे भी कोई ऐसा काम करवा ले अल्लाह ताला। हाँ, क्या लिखने के लिए बोले हैं, क्वेश्चन ये है डेफिनेशन जो भी आप लिख, अभी तक हमने 10-12 डेफिनेशन पढ़े हैं ना, हदीस कौली, हदीस फ़ैली, हदीस तकरीरी, आहाद, मुतवातिर, मशहूर, अजीज, गरीब, कुदसी, मरफू, मौकूफ, मक़तू, इसमें से 5 कम से कम लिखकर भेजेंगे आप लोग इंशाल्लाह। एडमिन परेशान हो जाना, ये कहाँ से आ रहे इतने मिसाइल बोलकर किताबों पेपरों के। शेख जी शेख, हम अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अहलुल हदीस हैं, लेकिन हमें आज मालूम पड़ा कि मुझे कि हदीसों किताब के अंदर मौकूफ और मक्तूब भी रहता है। हम समझते हैं कि पूरा पूरा नबी का कौल था। नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए गलती करते हैं, इसीलिए गलती जो बयानों में जो लोग आते, जो आधा सारा पढ़ते हैं ना, कौम में आकर बयाना शुरू कर देते, वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। इसीलिए हर एक का बयान सुनना चाहिए क्या? नहीं शेख, और शेख कई बार ऐसा होता है, बड़े से बहुत बड़े सारे लोग रासिखून हजरत अली के कौल को भी मोहम्मद हदीस मरफू की तरफ मंसूब कर देते हैं शेख। हाँ, इसीलिए हदीस बयान सुनते वक्त पर रासिखून फिल इल्म का बयान सुनना है, आम लोगों का बयान नहीं सुनना। क्या बोलना है भाई? आप बच्चे लोग हट जाओ बोलना। क्या बोलना? बच्चे लोग हट जाओ, ये दीन का इल्म हम लोग रासिखून फिल इल्म से लेंगे बोलना। जी शेख। बच्चे आके बड़े बड़े बातें सुना रहे, तो अरे क्या बयान करे भाई, अरे उनका बयान, वो बड़े आलिम है लेकिन उनका बयान का स्टाइल अच्छा नहीं है। क्या तालिब इल्म ऐसा कभी बोल सकता है? नहीं सच्चा तालिब इल्म क्या ये जुमला बोल सकता है? वो दक्तूर है, पीएचडी है, लेकिन उनका बयान में वो नहीं। अलबत्ता उन्हों है, देखो माशाअल्लाह, उन्हों पढ़ेश नहीं करते कभी मदरसे में, लेकिन क्या बयान करते भाई। तो ये एक तालिब इल्म ऐसा जुमला बोल सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा, बहुत गलत मेयार है। अगर कोई बयानबाजी से सुनकर मुतासिर हो रहा है और आलिमों को चेक नहीं कर रहा है, तो ये बहुत तालिब इल्म की निशानी नहीं है, ये एक आवाम की निशानी। आवाम, आप लोग तालिब इल्म है या आवाम उन्नास? अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म। मैं भी तालिब इल्म हूँ, डरने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए यहाँ पर अरबी में डेफिनेशन मैंने दिया, ये वॉलेंटरीली है, कोई जरूरी नहीं है, कोई याद कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन असल मुझे क्या चाहिए, हमारा चूंकि उर्दू का प्रोग्राम है इसलिए उर्दू चाहिए। आखिर में मैंने
जानबूझकर दे दिया। कोई अगर हो सकता है कि हमारे क्लास में ऐसे होंगे जो अरबी जानते होंगे और उनको बहुत आगे बढ़ना है, तो उनको भी बैलेंस करना है ताकि जी उनको ये शेख, ना लगे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो लोग भी आगे बढ़े, इसलिए मैंने अरबी में दे दिया। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अभी क्लास में ऐसे कोई है जिनको इंशाल्लाह इसको भी याद करेंगे शेख। क्लास में से कोई है जिनको मशहूर, मशहूर, अजीज, गरीब, मौकूफ, मक्तू, मरफू अभी तक समझ में नहीं आया? और क्यों समझ में, अब मेरा सवाल है क्यों समझ में नहीं आया अगर नहीं है तो? मतलब इतने मर्तबा बोलने के बाद क्या और मुझे 50 मर्तबा बोलना है तो मैं बोलूंगा, मैं नाराज नहीं होता, मैं गुस्से में नहीं आता। मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है कि मुझे हर एक को मदद करना है दुनिया में। जब तक मेरी जान है, जब तक मेरी सांस है, इस दीन को हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचाना, उसके लिए मैं हरगिज, मैं अपने आप को इंशाल्लाह ऐसा ट्रेन किया हूं। अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह मुझे इतना सब्र दे कि एक एक आदमी को समझाओ, एक एक बच्ची को, एक एक खातून को समझाओ इंशाल्लाह। आप लोगों में से कोई है जिनको फिर समझाना है? शेख हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे ही बना दे, कि ऐसे ही जज्बे वाला बना दे और इससे अच्छा बनाए। आमीन। आप लोग भी ऐसा दमदार अंदाज में दीनी काम करिए कि कभी मत थके दीन के, रात दिन कभी भी दीन का काम बोलते फौरन उसको तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चलिए, अभी अभी तक मैं समझता हूं कि हमारा स्टॉक क्लियरेंस हो गया जितना अभी तक जमा किया था। हम नेक्स्ट आगे इसके बाद हम जाएंगे, रमजान मुबारक के छुट्टी आ जाएंगे, तो रमजान मुबारक के बाद सेकेंड हिस्सा रहेगा इसका। तो किताब को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। शुरू में डेफिनेशंस है, इस्तिलाहात थे। नेक्स्ट में अब सही, दईफ, मौजू, ये जो असल टॉपिक है, मुस्तलाहातुल हदीस में असल टॉपिक क्या है? सही दईफ में फर्क करना। क्या है असल टॉपिक? मकबूल और मरदूद अहादीस में फर्क करना, ये असल टॉपिक है। इस पर कुछ सवालात है आप लोगों के? आज इसी पर इख्तिताम करते हैं हम लोग, अगर आपके सवालात नहीं है तो। शेख ये अरबी में सुना है डेफिनेशन? सुभान अल्लाह, अरबी में याद कर लिया आप लोग? जी अरबी आप में लोगों याद। के लिए लगता है मेरे जेब से आप लोग पैसे निकाल ही लेंगे कुछ इनाम के। जी सुनाइए। मुतवातिर हाँ, ما رواه عدد كثير عن مثلهم بحيث تحيل العادة تباطؤهم وتوافقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. सुभान अल्लाह। तो आप अरबी मीडियम से पहले पढ़े हैं कभी, आलिम कोर्स वगैरह कुछ? नहीं शेख याद किया हमने अभी, इससे पहले अच्छा, आपने तो अरबी में याद करना आपको मुश्किल पेश नहीं आया? जब अगर आप अरबी नहीं जानते हैं तो अरबी में याद करने में आपको मुश्किल पेश नहीं आई? हम जानते थे थोड़ा, मगर याद किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लाइफ में मुश्किल, इससे पहले कभी आप याद करे थे या हमारी क्लास में ही याद करने का मौका मिला? अभी फर्स्ट टाइम ही याद किए। सुभान अल्लाह, तकबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और कुछ ऐसे कुछ कारनामे, जैसे मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट जो है ना कोई बुक लिखे अपनी हाथ से। वो लोग बोले शेख मैंने बड़ी खुश खत से लिखा। कोई बोलेंगे शेख मैंने जो है ना यूट्यूब पर जो है अपने अल्फाज में, या यूट्यूब ने छोड़ दीजिए, मैंने अपने जो बच्चों को मैंने याद दिला दिया, तो एक नया कारनामा हो गया। कोई कहेंगे मैंने अपने स्टूडेंट्स को याद दिला दिया, कोई ऐसा ही बोलेगा। कोई बोलेगा कि जो है ना कुछ कारनामे, जो कोई बोले मैं अरबी में याद कर लिया, जिससे कि हमको लगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास हो जाए। क्या हो जाए? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सोचिए आप लोग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए कि भाई अगर ये डेफिनेशन समझाने में शेख को इतनी मुश्किल हो रही है, लोगों को समझने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो क्यों ना मैं एक सॉफ्टवेयर निकालूं। कोई आदमी कुछ ना कुछ नया सोचिए, ओके? तो तब मैं वो खुशी होंगी कि मेरे स्टूडेंट मेरे से भी आगे जा रहे, तब मैं और खुश हो जाऊंगा। और कोई सवाल है आप लोगों को अभी तक जो पढ़े हैं? किताबों के नाम बता सकते हैं? हमारे किताबों में कौन सी किताबों को बेस बनाकर ये कोर्स बनाया गया? जी शेख। जी शेख। नुज़हतुन नज़र, उलूमुल हदीस, उलूमुल हदीस, मिन अत्या बिल मिन्ना। मिन्ह, मिन्हतुन माने तोहफा, मिन्हतुन माने तोहफा, मिन्ह माने उसकी जमा है, मिन्हतुन की जमा मिन्ह, बेहतरीन तोहफे। अत्यब माने
अखबस माने बुरा, अत्यब माने बेहतरीन, बेहतरीन तोहफा फी इल्मिल मुस्तलह, ये किसकी है? इमाम इब्ने हजर नहीं रहमहुल्लाह। नहीं, इब्न मिनतबिल मना किसकी है? बाद शेख अब्दुल मुहसिन शेख अब्दुल करीम अल-अब्बाद। मुराद और अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद, ये आज के दौर के हैं, ठीक है, 300 शेख साल पुराने। अब्दुल शेख अब्दुल मोहसिन अल शेख अब्बाद अब्दुल मोहसिन अल-अब्बाद। जी। जी आप लोगों को भेजे हैं, आप लोग नोट्स पढ़ते हैं, आप लोग जो भेजे वो नोट्स पढ़ते हैं, आप लोग ने जमा हो रहे माशाल्लाह से, जी पढ़ते शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, लिख भी रहे हैं टाइम मिल उसको। रहा, आप आधा घंटा कैसा भी निकालिए रोजाना हर सब्जेक्ट के लिए। ये इब्न हजर शेख रहमतुल्लाह की अलैह की बुक बुक्स का नाम क्या है, कोई बता सकते? नुज़हतुन नज़र, नुज़हा माने नजर तफरी, निगाहों की जीनत, हाँ निगाहों की जीनत, जीनत या तफरी, नुज़हा तफरी। माने तफरी। हाँ, आंखों को अच्छा लगेगा अगर तुम पढ़ोगे नुखबतुल फिक्र फी मुस्तलह अहलिल असर। नुखबतुल फिक्र भी किसकी किताब? इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। लोगों ने आकर कहा जी कि शेख जरा तौज़ी कीजिए, जरा वजाहत कीजिए, ये तो बहुत छोटी है ना। तो उन्होंने तौज़ीह नुखबतुल फिक्र, नुखबतुल फिक्र की तौज़ीह एक्सप्लेनेशन के लिए किताब लिखी। तो नुखबतुल फिक्र की तौज़ीह का नाम उन्होंने क्या रखा? नुज़हतुन फी मुस्तहिल, नज़र। फी इब्न मुस्तलाहिल। हजर रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा क्या? सही बुखारी की उन्होंने सही शरह बुखारी की सबसे बेस्ट शरह किसने की? इब्न हजर, फतहुल इब्ने बारी, फतहुल बारी। फतहुल बारी। तो उन्होंने मुस्तलाह में किताब लिखी, तकरीबुत तहजीब भी उनकी है, तहजीबुत तहजीब भी उनकी है। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हदीस में काम करे, तो बाद के दौर में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का भी बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे किसी भाई ने कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी जो लिखी, तो कुतुबे सित्ता में 90% हदीसें कवर हो गई, बाकी की 10% हदीसें दूसरी किताब में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को क्रॉस चेक किया नहीं क्या उम्मत ने? हाँ क्या है शेख? जी शेख। क्या तो उन्होंने इब्न ऐसे ही हजर ने मान लिया सिर्फ बगैर शरह ही तहकीक? लिखी है। देखिए मेरा पॉइंट क्या है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अंधाधुन मान लिया उलमा ने या क्रॉस चेक किया 700 उलमा ने? चेक क्रॉस करना चेक नहीं शेख, क्रॉस चेक किया। अच्छा, क्रॉस चेक अंधाधुन करने के नहीं तरीके माना। अलग अलग थे मालूम। एक इमाम ज़हबी जी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बगदाद में इमाम बुखारी, एक जगह पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जमा हुए, तो सबने कहा कि अपन ऐसा करते हैं कि 10 एक मुहद्दिस 10 सनदे, क्या करे, एक मुहद्दिस 10 सनदे, और उलट पुलट कर दिए सनदों को, क्या कर दिए, उलट पुलट कर दिए। ऐसा कितने लोगों ने किया? 10 100 मुहद्दिस ने 10 यानी 100 को किया। इसका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, पूरे अवाम मौजूद थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप ये सनदे जानते हैं इमाम? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। पूरे अवाम परेशान, इतने बड़े इमाम है 100 सनदे नहीं जानते, बोले तो बहुत बड़ी ऐब की बात होगी उस जमाने में। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये ऐसी सनद तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता सही, हर सनद को सही करके कहा ऐसा जानता हूँ, ऐसा जानता हूँ, बोल के पूरे 100 सनदे सुना दिए। तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जहानत का अंदाजा लगा। शेख जी जी हाँ। जो गलत जी है हाँ, वो बताए, गलत ये गलती करे आप, ये इसको ऐसा करेक्ट करना, ये सनद से यहाँ लगाए, ऐसा पूरे हाँ, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं मुझे हैरत इस बात की नहीं है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 सनदों को सही कर दिया, मुझे हैरत इस बात की है उस मजलिस में जो 100 सनदों को उलट पलट करे थे ना, वो उलट पलट सनदे पहले सुना है, उसके बाद सही सनदे सुना है। यानी एक ही मजलिस में उल्टे 100 सनदे भी याद कर लियो, करके बताए कि उल्टी है। समझ में आ पॉइंट? जी जी और 4 हदीसें, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, 4 हदीसों में मैंने क्रॉस चेक किया, इमाम बुखारी उसमें सच्चे निकले। अच्छा, और एक भी तहकीक क्या है मालूम, अगर कोई आपसे कहे 4 हदीसें तो थी ना बे गलती, तो उस पर भी मुल्तका अहलुल हदीस एक वेबसाइट है जहां पर हदीस का रिसर्च, ये हदीस सही है दईफ है पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सा है? मुल्तका मुल्तका अहलुल हदीस, मुल्तका अहलुल हदीस, ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है जहां पर आपको बहुत बड़ा रिसर्च मिलता है सही दईफ का। और अगर आपको एक वर्ड में सही दईफ मालूम करना है तो कौन सा है? दुरर.net, इससे पहले दिया था मैं आपको, DORAR, दुरर.net, याद है आप लोगों को? नहीं शेख।
dora.net से पहले बताया था मैं, तो आप लोग मुझे याद दिलाइए, आने वाले हफ्ते में वेबसाइट यूज करना सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, आप लोग याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। स्क्रीन पर हदीस सही ज़ईफ कैसा पहचानेंगे उसका मैं वेबसाइट आपको यूज करना सिखाऊंगा। आप लोग रेडी हैं? हैप्पीली इंशाल्लाह। वेरी हैप्पी। अच्छा, तो मुल्तका अहलुल हदीस पे एक रिसर्च है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, उस पे लिखा हुआ है कि वो 4 मशहूर है, हर किताब में लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 4 हदीसों में इख्तलाफ करे, 4 हदीस में इख्तलाफ, लेकिन बाद में पता चला कि ये मनगढ़ंत है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं तारीख में कि 4 सनदों में इख्तलाफ है, जो है ना सनद को भी चेक करे, तो वो मनगढ़ंत है, किसी ने फैला दिया इमाम बुखारी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इख्तलाफ नहीं। इसका मतलब क्या निकला? एक भी अच्छा, आपको मैं एक और एक पॉइंट बताता हूं। कल के दिन अगर आप बोलेंगे नहीं शेख उस जमाने में क्रॉस चेक करे ना, तो अब आपने कोई आदमी जो है ना दज्जाली सिफत रहता, कोई खादियानी रहता, वो मानता नहीं, वो बोलता कौन याद रखे भाई उस जमाने के वाकई हमको नहीं मालूम। आज भी क्रॉस चेक करके बता सकते क्या? अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे आप लोग? देख सकते आज के दौर में भी कोई चेक करके बता सकता? बता सकते हैं। कैसा? रुवात को देखो कि अस्मा और रिजाल वगैरह का रिसर्च करके। हाँ, ये तो एक बहुत नहीं, ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत डिटेल, बहुत बड़ा मुहद्दिस होना पड़ेगा। और एक आसान तरीका बताऊं मैं आप लोगों को? हाँ बताइए शेख। हाँ, मुस्तखरज लिख लीजिए, मुस्तखरज। क्या लिखे आप लोग? मुस्तखरज। मुस्तखरज। तो इसमें क्या करें, इस्माइली इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक बहुत बड़े आलिम आए, उन्होंने क्या किया मालूम? जितनी सही बुखारी में हदीसें हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर एक सनद से पहुंचे तो दूसरी सनद भी तो मौजूद थी ना। जी मौजूद थी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 10 सनदों में से एक सनद जिक्र करे, तो बाकी के 9 सनदें छोड़ दिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में। तो इमाम इस्माइली क्या करते मालूम? अपनी सनद के जरिए से एक एक हदीस को चेक करके नई सनद दिए पूरी। क्या करे? नई सनद दिए एक मतलब अगर मान लीजिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना, तो वो क्या करते मालूम? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के साथ और कौन सुने ऐसी हदीस चेक करते। अच्छा, तो वैसा अबू हुरैरा से एक ताबई ने सुना तो दूसरे ताबई, ताबई से और एक ताबई था तो और एक ताबई, तो इन्हों क्या करते ऑल्टरनेट सनदे लाते पूरी, लाके पूरा प्रूफ करे के इमाम बुखारी सही थे, बोल के प्रूफ करे अपनी पूरी जिंदगी में। उस किताब का नाम मुस्तखरज इस्माइली। हर किताब की मुस्तखरज है, सही मुस्लिम की मुस्तखरज है अबू अवाना, स्क्रीन पर लिख दीजिए अबू शेख। अवाना। सही बुखारी की मुस्तखरज का नाम क्या? सही मुस्तखरज इस्माइली। वो आलिम का नाम क्या है? लिख दीजिए शेख इस पे, लिखिए, स्क्रीन पर लिख दीजिए ना। इस्माइली, इस्माइल सलाम से। शेख सही मुस्लिम को ऐसा किया गया शेख, क्रॉस चेक सही किया मुस्लिम गया। का भी, सही मुस्लिम का भी अबू अवाना। अच्छा माशाल्लाह। तो हर किताब का क्रॉस चेक है मालूम? अच्छा, मालूम ही था शेख, अभी मालूम पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आप सवाल करेंगे तो पता चलता। तो इतना अभी किसी को लिख के बताना तो कहाँ लिखूं मैं? चैटिंग बॉक्स में लिखना है, कहाँ लिखना? मैं लिखो, चैट में लिखेंगे तो दिखेगा हम लोग को। चैट बॉक्स पे तो सबको नजर नहीं आएगा शायद। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ पर नहीं दिए ना, ऑप्शन नहीं दिए लोग। हाँ, यहाँ पर आप ना स्क्रीन पे लिखिए। देखिए, नॉर्मल जो जूम रहता है ना, तो उसमें हर चीज रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत महदूद दिए लोग। छोटा सा लफ्ज है शेख, ठीक है। मुस्तखरज लिखे, MUS तीन ता खारा तीन। अगर दे पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, MUS TAK मुस्तख RAJ रज, मुस्तखरज। उर्दू में लिखिए मीम सीन ता मुस्तख खे रा जीम। आगे आप सबको मुस्तखरज का मतलब क्या, मीनिंग क्या शेख इसका? क्या बोले? मुस्तखरज माने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हदीसों को प्रूफ करने के लिए एक आलिम अपनी सनद से प्रूफ करता है, इसको कहते हैं मुस्तखरज।
जी समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? मुस्तखरज तो आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन में डाले कि सही बुखारी लिखे कौन क्रॉस चेक करे, तो आप सबसे आसान तरीका क्या, मुस्तखरज पढ़ लो बोलना। क्या बोलना? मुस्तखरज पढ़ लीजिए। मुस्तखरज इस्माइल। वो बोलेगा कि नहीं मैं मुस्तखरज नहीं पढ़ता हूं, बोलता हूं जाओ फिर 9000 रावियों के बारे में पढ़ लो, बोल अरे बाप भाग जाएगा। एक दोनों में हदीसें वही हदीसें हैं ना, दोनों मुस्तखरज इस्माइलिया में और सेम उन्होंने प्रूफ करने के लिए दूसरी सनद ले। माशाल्लाह। तो अब आपको किसी आप कोई आदमी शक करा हदीस में, तो हम उसके अकल पे शक करेंगे या हदीस पर? अकल पे शक। अकल में। मुस्लिम की हदीस को चाहने वाले पक्के मोमिन बनिए। ये कच्चे पक्के शक्की मोमिन वही बनता है जिसको हदीस के पीछे कितनी मेहनत हुई अंदाजा नहीं है। मुस्लिम का क्या नाम बताया सर? मुस्तखरज अबू अवाना। अवाना। तो फिर दीजिए मुझे इजाजत, मुझे जाना है, बहुत जल्द एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा हूं मैं, मुझे वहां पर किसी को लाने जाना है, तो मैं ताखिर हो जाएगी, तो फिर मैं और अभी जवाबात दे नहीं सकता, माजरत चाहता हूँ इंशाल्लाह। शेख अगर इसके बाद अब रमजान के बाद रमजान से पहले भी क्लास चलेगी। रमजान फर्स्ट रमजान से ये बंद हो जाएगा, रमजान तक इंशाल्लाह। इजाजत है? कुछ सवाल कर रहे थे? जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अब ये पार्ट अच्छा याद कर लीजिए, अगले हफ्ते से मैं सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। अभी इजाजत है इंशाल्लाह शरह सदर के साथ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे शेख। आमीन। जज़ाकल्लाह। खैर।